Hello, how are you all? Yes, all clear? Yes, waiting for your thumbs up so that we can quickly begin. Voice, picture, everything clear? Okay, thank you so much, Neetu, Rohan, for giving your valuable feedback. Okay, yes, let's quickly begin. तो हमें क्या करना है? Yes, I'm not watching your comments for now. Please let me focus. Okay? Yes, yes, my dear students. Now, okay, yes. Listen to me very carefully. ओके हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा विद इन 2 मिनट्स विल क्विकली रिवाइज हमने कल क्या देखा है एंड देन वील बिगिन विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज कस्टम्स लॉज ओके यस कल हमने क्या देखा कि ऑल द एक्ट्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू द लॉज ऑफ लैंड इन इंडिया फाइंड देयर रूट वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ any independent nation and the constitution of India is divided into 3 organs legislative executive and judiciary organ okay yes then and any particular act yes any particular act my dear students before becoming an act is in a form of a bill फिर वो bill present होता है before both houses of parliament and then क्या होता है वो जाता है दोनों houses में पास होने के बाद वो bill present किया जाता है president को और जब president अपना assent देते हैं वो particular bill बन जाता है act okay yes फिर हमने उसके बाद क्या देखा tax is what tax is a compulsory financial charge which is collected by the government from us हमसे लेते हैं हमारे लिए और किसके लिए यूज करते हैं वो हमारे लिए ही यूज करते हैं ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन केस ऑफ टैक्सेस व्हिच आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स ओके यस फर्दर The most important thing that we saw yesterday was taxes are of 2 types, direct taxes and indirect taxes. So come on, now you have to answer my question. Okay? Yes. Listen to the question very carefully. Indirect taxes are the taxes which are levied on one person and paid by another person. I repeat the question. Indirect taxes are the taxes which are levied on one person and paid by another person. Option A, true. Option B, false. Option C, partly true. Option D, partly false. Come on, answer the question. Okay, if anyone wants me to repeat the question, I shall do it. Indirect taxes are taxes which are levied on one person and paid by another person. Okay, my dear students, come on. I'm waiting for your answers. True or false? Okay. Yes. Okay, true. Okay. सबका आंसर ट्रू आ रहा है. There's Arjun who says false. Everyone else is saying true. ओके फाइन समझ गई सबको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स भूल गए क्या एक्चुअली आई डिडंट वांट यू टू टेक यू बैक टू दैट स्लाइड बट जस्ट 1 मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स आप भूल गए डिड यू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो टैक्स जो एक पर्सन पे लेवी होता है और उसका बर्डन दूसरे इंसान पे होता है हु पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इज इमटेरियल सी मैंने बोला था आपको एमसीक्यूज आर वेरी ट्रिकी माय डियर स्टूडेंट्स द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट इज द एमसीक्यूज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द आंसर to all those who said the answer as true, all your answers are wrong. Why? My question was, indirect taxes are taxes which are levied on one person and paid by another person. Actually क्या है? Indirect taxes क्या होता है? Levy एक इंसान पे होता है और उसका burden of payment ओके किसके दूसरे के ऊपर होता है चाहे कोई भी पे करे गवर्नमेंट को किसने पे किया ये मैटर नहीं करता किसके जेब से निकाल के पे किया ये मैटर करता है आई रिपीट
I repeat to all those who have made mistake, my dear students, ये मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट को किसने पे किया है, ये मैटर करता है कि किसके जेब से निकाल के गवर्नमेंट को पे किया है. ओके, द बर्डन ऑफ पेमेंट is on whom that matters in indirect taxes. Okay, and in case of direct taxes, the burden as well as levy both is on the same person. Okay, so it does not matter as to who makes the payment of taxes to the government. Do you get it? Okay, yes, everyone clear? Yes. So now today we shall be beginning with customs laws. Okay, have you ever come across this word customs? Okay, custom. अपने normal life में what is the meaning of the word custom? Custom means tradition, right? We have been on and off been using this particular concept wherein customs means what? Tradition. Okay, याद रखना custom मतलब क्या? Tradition. We are going to come to this point later. Okay, customs laws. Okay, yes, my dear students. Now, जब हम कस्टम्स लॉस की बात करते हैं, ओके, कस्टम्स लॉस, आप बताओ, आप लोगों ने कभी सुना होगा, आपने कस्टम्स टैक्सेस सुना है कि कस्टम्स ड्यूटी सुना है? कम ऑन, हैव यू कम अक्रॉस द वर्ड एज कस्टम्स टैक्सेस या कस्टम्स ड्यूटी? यस माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी. इट इज ऑलवेज कस्टम्स ड्यूटी. इट इज ऑलवेज कस्टम्स ड्यूटी. ओके, यस. नाउ मतलब फिर आपके दिमाग में सवाल आया, मैम कल तक तो आप टैक्सेस कर रही थी और आज अचानक से आप ड्यूटी बोल रहे हो, कस्टम्स ड्यूटी बोल रहे हो, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस and duties? Let us understand this, my dear student. Very important point. Okay, so first let us understand the difference between taxes and duties and then we'll go ahead. Tax is what? A financial obligation which is to be paid to the government compulsorily. मतलब क्या? अगर आपने पैसा कमाया, अगर आपके पास पैसा चल के आया तो उसमें से कंपल्सरीली आपको एक हिस्सा देना है गवर्नमेंट को. आई रिपीट, अगर आपके पास पैसा चल के आया, इफ यू अर्न इनकम, then a part of the income has to be paid in the form of taxes to the government, my dear students. Okay, this is the meaning of the word tax. अब ये ड्यूटी क्या है? ड्यूटी मतलब आप गुड्स, देर आर सर्टन गुड्स, आप उस गुड्स के साथ अगर मैन्युफैक्चर करते हो, उसको अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, ओनली देन ड्यूटी इज एप्लीकेबल. इसका मतलब क्या है? टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. टैक्स हमको क्या करना है? टैक्स का हमको पेमेंट करना है व्हेन देयर इज फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व. दैट मीन्स वेयर देयर इज मनी फ्लोइंग, पैसा आया, टैक्स पे करो गवर्नमेंट को. Do you understand? But in case of duty is leviable on goods, my dear students. ड्यूटी इज लेविएबल ऑन गुड्स. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं एंड नॉट कस्टम्स टैक्सेस. डू यू गेट इट? ओके, यस, ये कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप होगा धीरे धीरे. ओके, फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड टैक्स इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. हमें पैसा आया, गवर्नमेंट को टैक्स दो. अंडरस्टैंडिंग? बट ड्यूटी के केस में क्या होता है? आपने गुड्स के साथ अगर इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें क्या होता है? ड्यूटी इज लेविएबल. एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा सबसेट है टैक्स, ओके, और उसका सबसेट है ड्यूटी. मतलब क्या? ड्यूटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ टैक्स ओनली, राइट? बट टैक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है. ओके, टैक्स इज चार्ज ऑन इंडिविजुअल्स, वेल्थ, services, sales, whereas duty is charged on goods. There are two major types of taxes: direct taxes and indirect taxes. And in case of duty, you have excise duty, which is no more applicable, and also you have customs duty, which we are going to study in detail further. Okay? Yes, my dear students. Now, let's go ahead. अब समझते हैं कि एक्चुअली कस्टम्स ड्यूटी काम कैसे करता है. ओके, अंडरस्टैंड. इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मतलब इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कि देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सिटिंग एट द सेंटर, ओके, विच इज नोन एज यूनियन. ओके, विच इज नोन एज यूनियन. जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके, देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज स्टेट गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मेन जो सेंटर में बैठी होती है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, और हर एक स्टेट का
अपना एक गवर्नमेंट होता है, राइट, उसको कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट. मतलब देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, देयर इज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. मतलब दो गवर्नमेंट और एक कस्टम ड्यूटी, राइट, दो गवर्नमेंट और एक कस्टम ड्यूटी. तो अपने मन में सबसे पहला सवाल आया, मैम ये जो कस्टम्स ड्यूटी है, मैम ये जो कस्टम्स ड्यूटी है ये सेंटर के पास जाएगी या स्टेट के पास जाएगी, किसके जेब में जाएगी? ओके, हमने अगर गुड्स के साथ जो उनके कंडीशंस है, राइट, वो अगर हमने फुलफिल किए, गवर्नमेंट को हमने अगर कस्टम्स ड्यूटी दिया, तो वो किसके जेब में जाएगा, स्टेट के कि सेंटर के? नाउ दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर. सी, सब्जेक्ट मैटर, कौन से सब्जेक्ट मैटर किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा सब्जेक्ट मैटर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा सब्जेक्ट मैटर रहेगा. ये प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर दिया गया है आर्टिकल 246 में. आर्टिकल 246 में क्या है? देयर इज अ शेड्यूल 7. इस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 and list 3. Now what does these lists deal with? List 1 deals with union list. List 1 का नाम क्या है? Union list. मतलब it deals about those matters. Concentrate my dear students. It deals with those subject matters. ये किसका काम है? मतलब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे जाएंगे, इसके ऊपर किसका पावर रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहेगा. इसको बनाएगा कौन? पार्लियामेंट बनाएगा. सुनो ध्यान से, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स रहेंगे उस पे पावर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो टैक्सेस ड्यूटीज लिखे होंगे लिस्ट 1 में वो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, और बनाएगा कौन? पार्लियामेंट. अब जो लिस्ट 2 में है और जो लिस्ट 2 में है, स्टेट लिस्ट में, उस मैटर्स पे जो टैक्सेस रहेंगे, उस लिस्ट में जो ड्यूटीज है वो कलेक्ट करेंगे कौन? स्टेट गवर्नमेंट. बनाएगा कौन? स्टेट लेजिस्लेचर. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, पहले ही उन्होंने लिस्ट में एन्यूमरेट कर दिया है कि बाबा सेंट्रल गवर्नमेंट आप जो वही टैक्सेस लोगे जो लिस्ट 1 में लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट आप वही टैक्सेस लोगे जो लिस्ट 2 में लिखा है. लिस्ट 3 डील्स विद concurrent list. It is known as concurrent list. Means it deals with those matters in which central government and state government work in union. Okay? Yes. Now I have listed a few matters जो बहुत important है even अपने general knowledge के लिए. Okay? जो list 1 होता है ना my dear students, known as union list. What are the different matters which are there? Okay? I have enumerated a few of them. Banks है, राइट, डिफेंस है, रेलवेज है, फॉरेन ट्रेड है. दीज आर ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. वाई? क्योंकि वो लिस्ट 1 में लिखे. ओके, और अगर हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की, पुलिस की, प्रिजन, ओके, लिकर, ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स किसके हैं? स्टेट के हैं. क्यों? स्टेट गवर्नमेंट के हैं. क्यों? क्योंकि वो लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में लिखे हुए हैं. ओके, और ऐसे कुछ मैटर्स है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आके काम करते हैं. वो है एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट एंड वेरियस डिफरेंट लॉज माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अब ये हमको समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि आर्टिकल 246 बताएगा कि जो कस्टम्स ड्यूटी हमको पे करना है, वी हैव टू पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और वी हैव टू पे इट टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो फर्स्टली वी हैव टू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू गो टू द लिस्ट एंड वी हैव टू सी कि कस्टम्स ड्यूटी कौन से लिस्ट में लिखा गया है. ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कस्टम्स ड्यूटी लिखा गया है उसका नाम क्या है? ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज. और ये कहां पे लिखा गया है? लिस्ट 1. इट हैज बीन एन्यूमरेटेड माय डियर स्टूडेंट्स इन लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83. लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83. इसका मतलब क्या है? दैट इफ इट हैज बीन मेंशन्ड अंडर लिस्ट 1, लिस्ट 1 इज विच लिस्ट माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज यूनियन लिस्ट. मतलब यहां पे पावर किसका रहेगा? पावर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का. और बनाएगा कौन? ये जो लॉज है, कस्टम्स ड्यूटी से रिलेटेड जो लॉज है, हु विल बी ड्राफ्टिंग दीज लॉज? पार्लियामेंट विल बी ड्राफ्टिंग दीज लॉज माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. Okay, how have customs duty been introduced? Under what name customs duty have been introduced in the Constitution of India? You must know. It is not customs duty. It is duties of customs including export duties. You have to be very crisp, very clear when it comes to laws, my dear students. Okay, तो किस प्रकार से लिखा गया है? Duties of customs including customs
सॉरी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कहाँ पे लिखा गया है? लिस्ट 1 में। लिस्ट 1 में अगर लिखा गया है ओके तो ये किसका पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक्ट कौन लिखेगा? पार्लियामेंट लिखेगा। कौन सा एंट्री नंबर है? एंट्री नंबर 83। Okay, further customs duty is a tax, is a duty which is imposed on import and export of goods. अब जब हम कस्टम्स लॉज की बात करते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड फर्दर. अब समझते हैं हाउ एंड व्हाई डिड दीज कस्टम्स लॉज वे बीइंग फॉर्म्ड इन इंडिया. कैसे, किस प्रकार से बनाया गया. ओके, सी सबसे पहले इस पे एक प्रॉपर लॉ बनाया था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने. ओके, व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1786 में. 1786 में ब्रिटिशर्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैलकटा, ओके, ऐसा बोर्ड बनाया था कि क्या गवर्न करता था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. क्या गवर्न करता था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ओके, फिर क्या हुआ? फिर सी कस्टम्स एक्ट 1878 पास हुआ. फिर एयरक्राफ्ट एक्ट 1911 पास हुआ. लैंड कस्टम्स एक्ट 1924 पास हुआ. मतलब क्या? अब इंडिया है, राइट, इंडिया के तीनों बाजू में तो पानी है, बराबर है, तो पानी से भी सामान आ सकता है इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया से, राइट. सो फॉर दैट यू हैड सी कस्टम्स एक्ट, राइट. फिर एयरक्राफ्ट से अपना सामान इंडिया में आ सकता है, सो यू हैड एयरक्राफ्ट एक्ट. फिर कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड इवन बाय रोड टू इंडिया, राइट. सो देयर वाज लैंड कस्टम्स एक्ट ऑल्सो. ओके, और फिर क्या था? देयर वाज इंडियन टैरिफ एक्ट 1924. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया? ये जो 3 लॉज थे, सी कस्टम्स एक्ट, लैंड कस्टम्स एक्ट एंड एयरक्राफ्ट एक्ट, ये तीनों एक साथ क्लब कर दिए गए और एक ही एक्ट बनाया गया, कस्टम्स एक्ट 1962. Okay, all of these 3 acts were promulgated together into Customs Act 1962. और ये जो इंडियन टैरिफ एक्ट था, okay, this Indian Tariff Act was replaced by Customs Tariff Act 1975. Okay, yes my dear students. So चलो, what is the history of customs laws in India? 1786 में ब्रिटिशर्स ने पहले क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बनाया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैलकटा. देन सी कस्टम्स एक्ट था, लैंड कस्टम्स एक्ट था, एयरक्राफ्ट एक्ट था, इंडियन टैरिफ एक्ट था. सी लैंड वाटर, ये एक होके क्या हो गया? कस्टम्स एक्ट 1962 एंड इंडियन टैरिफ एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. ओके, यस. फर्दर इतना ही नहीं, कस्टम्स ड्यूटीज ब्रिटिशर्स के बाद कैसे आया, उन्होंने लॉज कैसे बनाया, ये तो पता चला. बट कस्टम्स लॉज डेट्स बैक टू इवन बिफोर दैट. ओके, उसके पहले भी कस्टम्स लॉज था. ओके, उसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है. ओके, से अपने इंडिया में, ओके, अपने इंडिया में देखा है हमने कि पुराने बहुत सालों से इंडिया पे किसने राज किया है? कुछ किंग्स थे, राइट. किंग्स आए गए, दे हैड देयर ओन किंगडम, बराबर है. अब क्या हुआ? सी ये जो क्या था, दिस वाज द एंट्री गेट, राइट. इसके अंदर अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस एरिया के अंदर, यस, this was what? This was the entire territory, right? This was the entire territory of the king. बराबर है. Okay, now understand my dear students. Okay, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. See, अब क्या होता था? समझो, चलो ये तो मैंगो का सीजन है, बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगी. ओके, से there are different agriculturers, farmers here, okay, and they are selling mangoes in this particular kingdom. ओके, अब मानो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मानो कि कोई एक इंसान है जो क्या हो रहा है, दूसरे किंगडम से यहाँ पे आ रहा है. ही इज एंटरिंग द किंगडम एंड ही इज सेलिंग द मैंगोज हियर. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे जो फार्मर्स है उनका प्रोड्यूस सेल नहीं होता उसका, और दूसरे का जो बाहर से आया है उसका माल बेच दिया जाता है, और इससे क्या होता है? इन लोगों का नुकसान होता है, राइट. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग. ओके, वो बोलते हैं ना, राजा की क्या है? ड्यूटी है कि अपने प्रजा की क्या करे? रक्षा करे. करेक्ट. Okay, yes. So in that case, it is the duty of this king to take care कि यहाँ से जो outsiders आ रहे हैं ना, वो क्या करें? उसके वजह से अपने लोगों को नुकसान ना हो. इसलिए वो लोग क्या करते थे? जो बाहर से आते थे ना यहाँ पे, ओके, उनसे क्या कलेक्ट करते थे? फीस. क्या कलेक्ट करते थे?
फीस, और उसी फीस को आज हम लोग कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी, राइट? कस्टम्स ड्यूटी. दिस किंगडम बिकम्स इंडिया. दिस इज व्हाट? दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया के अंदर आएगा या जो इंडिया के बाहर जाएगा उसको क्या पे करना पड़ेगा? उस गुड्स को क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा. अंडरस्टैंडिंग? हेंस आई एम रिलेटिंग टू दिस वर्ड कस्टम्स एज ट्रेडिशन. क्यों? क्योंकि वो कई सालों से हम क्या करते आए हैं? हम इसको कलेक्ट करते आए हैं लोगों से. ओके, हेंस द वर्ड कस्टम्स ड्यूटी. ओके, यस. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है. ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया है कि जो सिटी गेट्स के एंटर होते थे जो गुड्स, और जो गुड्स सिटी गेट्स के बाहर लेके जाते थे, उन पे उनको क्या पे करना पड़ता था? उनको शुल्क पे करना पड़ता था. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुल्क? शुल्क मीन्स फी. इट इज अ संस्कृत वर्ड. शुल्क का मतलब क्या है? उनको फी पे करना पड़ता था. ओके, यस. फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स आए. ओके, फिर उन्होंने अपना एक्ट बनाया, राइट? फिर हमने क्या किया? हमने कस्टम्स एक्ट बनाया, सॉरी, सी का एक्ट बनाया, देन एयरक्राफ्ट एक्ट बनाया, देन लैंड कस्टम्स एक्ट बनाया, राइट? देन दिस वाज ऑल पुट टुगेदर इनटू कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स. Do you understand? This is the way customs laws have been introduced into the lands of India. Very, very, very important from MCQ's point of view. Okay? We cannot afford to lose marks here. भले अभी 10 मिनट ज़्यादा दो तो चलेगा, क्योंकि that will make a mark on your mind. आप कभी भूलोगे नहीं. Okay? Yes. चलते हैं आगे to next interesting point. अब अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? Customs laws. Right? क्या उन्होंने बोला है Customs Act? No, the word referred here to is as laws, my dear students. That means हम रेफर करेंगे कस्टम्स एक्ट 1962 को. राइट? कस्टम्स एक्ट 1962 हमें बताता है कि लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी किस प्रकार से किया जाएगा. ओके, ये हमको बताया गया है कस्टम्स एक्ट 1962 में. कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975. कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 हमको बताता है हाउ टू क्लासिफाई द गुड्स एंड व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी. माय डियर स्टूडेंट्स, किस रेट पे और कैसे हमको कस्टम्स ड्यूटी चार्ज करना है, ये हमको बताया गया है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में. ओके, इसके साथ साथ जैसे कि कल हमने देखा था, प्रोविजंस ऑफ लॉ आर गिवन इन द रिस्पेक्टिव एक्ट्स, बट उस प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कैसे करना है ये बताया गया है रूल्स में. राइट? अब ये रूल्स जो कस्टम से रिलेटेड रूल्स है, ये कौन फ्रेम करता है? सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन फ्रेम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. फर्दर अब आए रेगुलेशंस. राइट? तो जब हम लॉस की बात करते हैं, व्हाट ऑल इज एप्लीकेबल? एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस. राइट? देन व्हाट एल्स इज एप्लीकेबल माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, then you have notifications also. बराबर है? Again, this is very important from MCQ's point of view. Rules for customs laws. Okay, customs laws के rules कौन फ्रेम करता है? Central government. Customs laws के rules कौन फ्रेम करता है? Central government. और जो regulations है वो कौन फ्रेम करता है? CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. ओके, तो रूल्स बनाया गया है सीजी ने और रेगुलेशंस बनाए हैं CBIC ने. ओके, यस. फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, जो नोटिफिकेशंस है, जो भी चेंजेस होते हैं एक्ट में, राइट, ये चेंजेस, ये नोटिफिकेशंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लिसन टू बी वेरी केयरफुली. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस सिर्फ अनाउंस कर दिए तो क्या वो एप्लीकेबल हो जाएंगे? नो, दीज नोटिफिकेशंस नीड टू बी पब्लिश्ड in the official gazette, my dear students. They need to be published in the official gazette, और उनके publication के बाद ही, वो publish होने के बाद ही they become applicable to us. Do you understand? So customs laws में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Customs Act 1962, जहाँ पे हमको levy, assessment, collection समझेगा. Customs Tariff Act में हम classification और rates समझेंगे. And रूल्स जो है वो किसने बनाए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. रेगुलेशंस बनाए गए हैं CBIC ने, और नोटिफिकेशंस बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो पब्लिश किए जाते हैं ऑफिशियल गजेट में. दे नीड टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. नाउ लेट्स बिगिन विद द कोर एक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. अब समझिए, अगर मैं आपको बता दूं, ओके, अगर मैं आपको बिना कोई इंफॉर्मेशन देके अनाउंस कर दूं कि यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज 7 बजे टैक्स का लेक्चर रहेगा,
यू विल बी बम्बार्डिंग मी विद क्वेश्चंस कि मैम आप लोगे कि कोई और लेगा, राइट फिर वो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा कि सीएस प्रोफेशनल के लिए रहेगा, राइट आप कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, राइट सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच फ्लो टू इट एंड इन द सेम वे जब हम कस्टम्स ड्यूटी की बात करते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि ये कस्टम्स ड्यूटी किस पे लेवी होगा, किस रेट पे लेवी होगा, राइट कैसे लेवी होगा, कौन कलेक्ट करेगा, ये तो हमको आर्टिकल 246 ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, बराबर है, राइट गेटिंग इट। सो इसके लिए बनाया जाता है इसके लिए बनाया जाता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स गिव्स अस ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स और ड्यूटी। क्या बोला गया है सेक्शन 12 में? सो विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962? सेक्शन 12। सेक्शन 12 ने हमको क्या बताया गया है? सेक्शन 12 में हमको क्या बताया गया है? ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेवीड। शैल बी लेवीड मतलब ये मैंडेटरी है, ओके आपको मैंडेटरीली ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स चार्ज करने ही पड़ेंगे, लेवी करने ही पड़ेंगे, ओके एंड आफ्टर दिस पॉइंट आई वांट यू टू कम टू दिस पॉइंट फर्स्ट। ओके क्या बोला गया है? ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स शैल बी लेवीड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके समझने की बात है, समझने की बात है कि उन्होंने बोला है, ओके यहाँ पे उन्होंने लेवी की बात करी है, और जब उन्होंने लेवी की बात करी है तो दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर दैट कलेक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी फर्स्ट इज मैंडेटरी, राइट सेकेंड उन्होंने बोला गया है कि ये कलेक्ट किया जाएगा गुड्स पे, कलेक्ट किया जाएगा गुड्स पे। इसका मतलब है चार्जिंग सेक्शन ने ही बोल दिया है कि कस्टम्स ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज। Customs duty is not applicable on services, it is applicable on goods, my dear students. Okay, yes, it is applicable on goods. Okay, और इस goods के साथ क्या होना चाहिए? These goods should be either imported into India or exported from India. मतलब क्या? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्टेड इनटू इंडिया मतलब क्या? कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स। जब बाहर से गुड्स इंडिया में आएंगे तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा, और जो इंडिया के गुड्स बाहर जाएंगे उसको एक्सपोर्ट कहा जाएगा। राइट everyone? Okay, so levy, come on my dear students. So these are the important points which we need to consider with respect to levy of customs duty. Customs duty is mandatorily levied on what? Goods or services? Goods. और गुड्स के साथ क्या होना चाहिए? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ओके इन दैट केस यू हैव टू कलेक्ट कस्टम्स ड्यूटी। अब आते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट में क्या बोला गया है? एट सच रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, एट सच रेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब कस्टम्स एक्ट हमको बोलता है कि आपको कस्टम्स ड्यूटी कलेक्ट करनी है, लेवी करना है, पर किस रेट पे लेवी करना है? ओके जब हम ड्यूटी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज व्हाट? इट इज वैल्यू इनटू रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ ड्यूटी, करेक्ट। ये वैल्यू हमको बताया गया है कस्टम्स एक्ट में, राइट एंड दिस पर्टिकुलर रेट हैज बीन मेंशन्ड इनटू कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। क्लियर? ओके सो अगर हम बात करते हैं लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी की, ओके अगर हम बात करते हैं लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी की, इन दैट केस इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑन गुड्स, इट इज नॉट ऑन सर्विसेज, इट इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। रेट्स कहां पे बताया गया है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। क्लियर? ओके नाउ वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। The aforesaid provisions shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government. Very important. क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला गया है कि इट विल बी एप्लीकेबल, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो। जैसे एक आम आदमी पे कस्टम्स ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? ओके यस सो व्हेन वी स्पीक ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ओके इट इज गिवन इन चार्जिंग सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जहां पे बोला गया है कि कस्टम्स ड्यूटी इज मैंडेटरी।
मतलब अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया ना तो आपको कस्टम्स ड्यूटी चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपने उससे प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको उससे लॉस हुआ हो। इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। दैट इज योर बिजनेस डिसीजन, दैट इज योर डिसीजन। इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया तो आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा। आप चाहे गवर्नमेंट हो, आप चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, आप चाहे कोई भी हो, आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड फर्दर। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि लैंड कस्टम्स एक्ट, एयरक्राफ्ट्स एक्ट एंड सी कस्टम्स एक्ट हैज बीन प्रोमलगेटेड टुगेदर इनटू कस्टम्स एक्ट 1962, जहां पे हमको लेवी एंड कलेक्शन बताया गया है। किस पे होगा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। ओके, और हमने नेक्स्ट क्या देखा कि जो इंडियन टैरिफ एक्ट था वो कन्वर्ट हो गया है कस्टम्स टैरिफ एक्ट में, और कस्टम्स टैरिफ एक्ट हमको बताता है रेट्स ऑफ ड्यूटी में। ओके, अब नेक्स्ट सवाल, मैम अब देयर इज इंपोर्ट ऑल्सो एंड देयर इज एक्सपोर्ट ऑल्सो, राइट? तो क्या दोनों को सेम रेट एप्लीकेबल होगा? अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉमन सेंस के हिसाब से व्हाट इज मोर बेनिफिशियल टू कंट्री, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल टू इंडिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? कम ऑन, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल टू आवर कंट्री, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट? यस माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, यस। Yes, export. Now come on, what is the most simple logic behind it? ऐसा क्यों कि एक्सपोर्ट हमें ज्यादा बेनिफिशियल है? व्हाई? बिकॉज हम एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से गुड्स बाहर भेजेंगे, फिर बाहर की पार्टी हमको पेमेंट करेगी, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी विल फ्लो इनटू इंडिया, right? So it is government which wants to encourage more and more export as against import. वो import को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहते हैं। इसलिए उनके रेट्स भी अलग अलग है, और ये जो अलग अलग रेट्स है, दिस हैज बीन गिवन टू अस अंडर as import duty and export duty under schedule 1 and schedule 2. So schedule 1 speaks about import duty and schedule 2 speaks about export duty. Yes, I think there is one student who is continuously disturbing, who's having one very important question. Yes, please. Yes, there's one student who's having such an important question. Ramlingam Iyer. Yes, tell me. If it is not that important, please let me continue and do not disturb. Okay. Yes. So, come on. Rates of duty, you have an import duty, export duty. Import duty has been explained in schedule 1 and export duty has been explained into schedule 2. Okay? Yes. अब इंपोर्ट ड्यूटी के लिए एक स्टैंडर्ड रेट भी होता है और एक प्रेफरेंशियल रेट भी होता है। सी अंडरस्टैंड, जब हम एक ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, राइट, सो व्हाट डू दे वांट? ओके, हमको कई कंट्रीज है उनके साथ चलते हुए काम करना पड़ता है, राइट? हम अपने ही वो बोलते हैं ना, स्वैग में नहीं चल सकते, राइट? इंडिया कैन नॉट वॉक अलोन, इंडिया हैज टू वॉक अलोंग टुगेदर विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, राइट? सो देयर आर अ फ्यू मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मतलब क्या? देयर इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पता होगा, राइट? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, दोज आर नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशंस। ओके, तो अगर आप उनसे इंपोर्ट करते हो तो आपको एक प्रेफरेंशियल रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक प्रेफरेंशियल रेट दिया जाता है। और अगर ऐसे आप दूसरे किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट करते हो तो इन दैट केस standard rate is applicable. Clear my dear students? Okay, yes. So come on, customs tariff act क्या बोलता है? शेड्यूल 1 में है इंपोर्ट ड्यूटी, शेड्यूल 2 में है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का स्टैंडर्ड रेट है, बस अगर सिर्फ आप मोस्ट फेवर्ड नेशन से, मतलब जो WTO के मेंबर्स है, अगर आप उनसे माल लेते हो, उनसे अगर आप इंपोर्ट करते हो तो ही आपको प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस, लेट्स गो हेड फर्दर। नाउ जैसे कि हमने देखा चार्जिंग सेक्शन 12 में क्या कहा गया है, दैट इवन इफ यू आर गवर्नमेंट and even if you are indulged into import and export of goods, okay, I'm not speaking of import and export of services, I repeat, import and export of goods, in that case आपको क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम्स ड्यूटी, राइट? बट देयर आर अ फ्यू केसेस जहां पे कस्टम्स ड्यूटी इज एग्जेम्प्ट। अब वो कौन से गुड्स है? इंपोर्ट्स बाय इंडियन नेवी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू माय डियर स्टूडेंट्स।
अगर इंडियन नेवी कोई भी इंपोर्ट करती है then it is exempted from customs duty. It is exempted from customs duty. Okay, अगर आप import, अगर पुलिस कोई specific equipment import करती है, okay, see this is all for what? This is all for the defense of the nation, for protection of this country, right? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि उस पर exempt कर देंगे, हम उस पर customs duty charge नहीं करेंगे. First है imports by Indian Navy, imports of specific equipments by police, then imports by Ministry of Defense. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगर कोई चीज इंपोर्ट करी तो उस चीज में भी आपको कस्टम्स ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगा. इंपोर्ट्स बाय कोस्टल गार्ड, अगर कोस्टल गार्ड ने भी कुछ इंपोर्ट किया तो कस्टम्स ड्यूटी विल नॉट बी एप्लीकेबल. Okay, yes, so charging section 12, but there are a few imports on which customs duty is exempt. Okay, now application of the act. Okay, हमें क्या बोला है? Import and export of goods into India from India, into India from India. इसका मतलब है कि सबसे पहले we need to understand कि what is meant by India under Customs Act. What is meant by India under Customs Act, my dear students? Okay, yes, now this is India. Okay, the land mass, please focus, my dear students. I am taking you ahead to a few very, very, very important points, my dear students. Okay, yes. Now India मतलब क्या? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राइट? क्या इंडिया इतना ही है? Only this land mass is India? Tell me, my dear students. This is what? This is land mass, धरती, राइट? धरती माँ हम जिसको बोलते हैं ना, भारत माता की जय, राइट? Now can we say that for customs only this land mass is India? Yes, my dear students. No. See, understand, इंडिया तीनों बाजू से पानी से घिरा हुआ है, करेक्ट? तो यहाँ पे उनका क्या कहना है कि जो ये बेस लाइन है ना, जो हमारा बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स, ओके, 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.85 किलोमीटर्स, माय डियर स्टूडेंट्स. 1 नॉटिकल माइल मीन्स 1.85 किलोमीटर्स. ओके, मतलब उनका क्या कहना है कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया पानी में रह जाता है उसको कहा जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. क्या कहा जाएगा? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया. मतलब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मतलब अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट करी और अगर वो चीज इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आ गई, ओके, अंदर आ गई, देन इट वुड बी सेड एज इंपोर्ट इनटू इंडिया. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब हमको इस बेस लाइन से अंदर आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. व्हाई? बिकॉज इवन दिस पार्ट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब अगर यहां से कोई गुड्स बाहर जाता है, ये 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया अगर उसने क्रॉस कर दिया, ओनली देन इट इज नोन एज एक्सपोर्ट्स. Only then it is known as exports. Okay? Do you understand, my dear students? Very important. Very important. हमने सेक्शन 12 में क्या देखा, चार्जिंग सेक्शन में, कि जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाएगा तब क्या होगा? कस्टम्स एक्ट लेवी हो जाएगा, राइट? मतलब क्या? यहाँ पे लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये 12 नॉटिकल माइल से माल बाहर जाए या इस 12 नॉटिकल माइल से बाहर अंदर आए, क्या हो जाएगा? कस्टम्स ड्यूटी लेवी हो जाएगा. तो क्या यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल पे हम ऑफिसेस कैसे बनाएंगे, राइट? हाउ विल यू बी एबल टू कलेक्ट कस्टम्स ड्यूटी? इसलिए कलेक्शन कब हो जाएगा? आप जब इस बॉर्डर पे आ जाओगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा. पर अगर आपने ये 12 नॉटिकल माइल का जो हमारा क्या है, वो बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, अगर आपने वो क्रॉस कर लिया, देन इट इज ईदर इंपोर्ट और इट इज ईदर एक्सपोर्ट. Okay, do you understand, my dear students? Do you understand? Okay, yes. अब ये तो हुई 12 नॉटिकल माइल्स की कहानी. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. ओके, अब अपने बेस लाइन से ये जो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया ना, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अब समझिए क्या होता है ना, जैसे हम पानी में जाते हैं, देयर आर अ फ्यू स्लोप्स हियर, राइट? दीज स्लोप्स आर रेफर्ड टू एज कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ इंडिया. ओके, अब इस एरिया में क्या होता है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब इस एरिया में क्या होता है? ओके, मतलब 12 नॉटिकल माइल जहां पे खत्म होता है एंड अप टू 200 नॉटिकल माइल, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, फ्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्टेड, जैसे फिशिंग है, राइट? देन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस, राइट? ऑयल रिग्स,
उनका काम कहाँ पे होता है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। हर कंट्री ओके इस जितने भी कंट्रीज है ओके उन जिनके आजू बाजू पानी है उनको 200 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया है उसको ट्रीट किया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वाई, फॉर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिशिंग के लिए, ऑयल रिग्स पर्पज, नेचुरल गैस पर्पजेस। ओके, अब आपके यहाँ मन में सवाल आएगा कि मैम 200 नॉटिकल माइल से हमारा क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ देखना है कि इंडिया में आया कि इंडिया से बाहर गया, उसके लिए तो हमको सिर्फ 12 नॉटिकल माइल देखना है। बट अंडरस्टैंड क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का हक किसका है, इंडिया का है, राइट। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग कौन करेगा, इंडियन ऑफिशियल्स करेंगे, राइट। यहाँ पे चेकिंग कौन करेगा, इंडियन ऑफिशियल्स करेगा। और उन इंडियन ऑफिशियल्स को राइट होता है कि इस एरिया में ओके अगर कोई बिना परमिशन घूमता हो तो उसको सर्च करो, ओके उसके पास कौन से गुड्स है देखो। इफ दे आर प्रोहिबिटेड गुड्स यू कैन सीज द गुड्स, यू कैन टेक अवे द गुड्स, ओके। और अगर जरूरत पड़े तो आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? ओके अगर आपने वो जो अपने होटल ताज पे अटैक हुआ था उस पर एक मूवी आई थी, राइट, जहाँ पे नाना पाटेकर इज प्लेइंग लीड रोल, ओके। तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो स्टार्ट में केयरफुली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इंडिया के मुंबई का जो एरिया है ना, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे अपने इंडिया के नेवी शिप्स घूमते हैं, वाई, फॉर पेट्रोलिंग, राइट। तो ये कौन सा वाला एरिया है, ये वो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया है, ओके। सो 12 नॉटिकल माइल तक है अपना टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आपने 12 नॉटिकल माइल से गुड्स अंदर आए तो इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट, 12 नॉटिकल माइल से बाहर जाए इट इज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। और ये जो 200 नॉटिकल माइल वाला तक एरिया है, मतलब 12 नॉटिकल माइल जहाँ तक खत्म होता है और 200 नॉटिकल माइल तक, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वेर इन वी कैन डू फिशिंग एक्टिविटीज, वी कैन एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स, ओके। मतलब सिर्फ इन पर्पजेस के लिए ये पर्टिकुलर एरिया यूज किया जाता है, ओके, यस। एंड this particular area till 200 nautical miles from baseline is known as Indian customs water. Why is it known as Indian customs water? Because Indian customs, ओके, कस्टम्स ऑफिशियल्स को राइट है कि वो 200 नॉटिकल माइल तक पेट्रोलिंग करे, देखे कि कौन घूम रहा है अपने इलाके में, कौन नहीं घूम रहा है अपने एरिया में, उसको सर्च करो, उसको सीज करो, जरूरत पड़े तो आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हो, ओके। मतलब इस एक स्लाइड में हमने 2 डेफिनेशंस देख लिए। डेफिनेशन नंबर 1, what is India under Customs Act 1962? Okay, the land mass, right, plus 12 nautical miles from baseline is territorial waters of India, which is understood as a part of India, right? और इतना ही नहीं तो 200 नॉटिकल माइल तक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा, पार्ट ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाएगा फॉर ऑयल रिग्स एंड नेचुरल गैस पर्पसेस, ओके। और उस एरिया में अपने कस्टम्स ऑफिशियल्स की क्या राइट है, वो चाहे तो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं, ओके, यस। फर्दर हमने क्या देखा, इंडियन कस्टम्स वाटर मतलब क्या, बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स वाला तक जो एरिया है उसको ट्रीट किया जाएगा इंडियन कस्टम्स वाटर। नाउ फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस, नाउ फोकस, यस, लेट्स गो अहेड फर्दर। अब क्या होता है ना, अब जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अब इंडिया के तीनों बाजू क्या है, पानी, राइट। तो अगर हमको वाया पानी, लिसन टू मी, अगर हमको वाया पानी कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो हम किसकी मदद लेंगे, शिप की, ओके। एंड इस शिप को टेक्निकल कस्टम्स लैंग्वेज में कहा जाता है वेसल। क्या कहा जाता है, वेसल। तो अगर आपने कस्टम्स लॉ पढ़ते वक्त वेसल का नाम सुना तो इसका मतलब क्या है, इट इज मेंट दैट बाय शिप, ओके, यस, ओके। फर्दर, ओके, इट इज नोन एज वेसल। अब आगे, अगर आप वाया एयर गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इट विल कम वाया एन एयरक्राफ्ट, ओके, यस। एंड अगर वाया लैंड, अगर आपने वाया लैंड गुड्स को इंपोर्ट किया तो इन दैट केस इट इज नोन एज वेहिकल, okay, and in this definition of vehicle even railways is included,
ओके मतलब हमने चलते चलते ही कितने अच्छे से डेफिनेशंस बाय हार्ट कर लिए. कस्टम्स में डेफिनेशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, विच कैन बी रियली आस्क्ड टू यू इन योर एग्जाम्स. ओके तो चलो, इंडिया मतलब क्या देखा, इंडियन कस्टम्स. वाटर मतलब क्या देखा. ओके अब दिस शिप विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, passengers, baggage is known as vessel under Indian Customs Act 1962. करेक्ट. ओके और जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो व्हीकल, इट इज नोन एज व्हीकल. ओके और इस व्हीकल में रेलवेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके मतलब रेलवेज से भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो. दिस हैज बीन मेंशन्ड इन दी एक्ट. ओके अब समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिए जब हम माल इंपोर्ट करते हैं, ओके जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या ये वेसल चलते मानो इस 12 नॉटिकल माइल वाले पे पहुंच गया. राइट 12 नॉटिकल माइल पे पहुंच गया मतलब इसने क्या किया, इंडिया क्रॉस कर दिया. मतलब अब इसको क्या होगा, ये इंपोर्ट माना जाएगा. राइट क्या ये इंपोर्ट ड्यूटी यहीं पे कलेक्ट की जाएगी? नहीं, इसको चलते क्या करना पड़ेगा, इंडिया के बॉर्डर तक, बेस लाइन तक आना पड़ेगा. राइट अब इंडिया के बेस लाइन पे ये आएगा, तब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा और अपने को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करना पड़ेगा. Right collection, import duty collection. Do you understand? Means this is the levy, this is the point of levy and this is the point of taxable point. This is the taxability event. क्लियर. अब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ओके अब सपोज मानो कि आपने माय डियर स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, आपने माल इंपोर्ट किया है, तो क्या वो बॉर्डर पे आके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या वो बॉर्डर पे आके माल कहीं पे भी रख सकते हैं? क्या वो माल कहीं पे भी रख सकते हैं? नो. कस्टम्स में देयर आर अलॉटेड एरियाज माय डियर स्टूडेंट्स. कस्टम्स में देयर आर अलॉटेड एरियाज एंड यू नीड टू, आप क्या माल लाए हो, कौन सा माल लाए हो और आपको कहाँ पे इसको अनलोडिंग करना है, आपको स्पेसिफिक जगह दी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टम्स पोर्ट एंड कस्टम्स एयरपोर्ट. अगर माल पानी से आया तो वो कस्टम्स पोर्ट पे उतारा जाएगा. राइट अगर माल एयरक्राफ्ट से आया तो कस्टम्स एयरपोर्ट पे उतारा जाएगा. कस्टम्स एयरपोर्ट इज अ प्री डिसाइडेड एरिया. ओके इट इज अ प्री डिसाइडेड एरिया जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अनलोडिंग करते हैं इंपोर्ट गुड्स की, या अगर आपको गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो उसका लोडिंग किया जाता है कहां पे, कस्टम्स एयरपोर्ट में. ओके यस. देन इंटरनेशनल कॉरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई पार्सल्स होंगे, अगर कोई कोरियर्स होंगे तो वो कहां पे हैंडल होंगे, इस कुरियर टर्मिनल पे या फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे. नाम ही में ही बताया गया है फॉरेन पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस का वो एरिया जो हमको एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए अलॉट किया गया है उसको कहा जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस. ओके एंड देयर इज लैंड कस्टम स्टेशन ऑल्सो. ओके इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ओके इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्या है ना, देयर इज लैंड कस्टम स्टेशन. मतलब क्या, ट्रांजिट है, अपने को जो टैक्स कलेक्ट करना है, राइट फिर लोगों को बैगेज हैंडलिंग करना है, तो वो सारा के सारा कहाँ पे होता है, लैंड कस्टम्स स्टेशन पे होता है. इट इज प्रॉपरली अ गेटवे, ओके फ्रॉम इंडिया टू गो आउटसाइड इंडिया एंड टू कम इनटू इंडिया. ओके यस. सो व्हाट डिड वी सी कि जब माल इंडिया में इंपोर्ट होगा तो वो आइदर कहाँ पे जाएगा, कस्टम्स पोर्ट पे जाएगा, या तो कस्टम्स एयरपोर्ट पे जाएगा, या तो इंटरनेशनल कॉरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा, या तो लैंड कस्टम्स स्टेशन पे जाएगा. और इन तीनों ही चीजों को माय डियर स्टूडेंट्स बोला जाता है कस्टम्स स्टेशन. क्या बोला जाता है, customs station. So here we have finished one more definition. Okay, here we have completed one more definition. और वो definition क्या है, customs station is an area which is being allotted for import and export of goods, passengers, etc. And it includes customs port, customs airport, okay, international courier terminal, foreign post office and land customs station. Clear my dear students? ओके मतलब अगर हम आज समअप करें, ओके तो हमने कौन से डेफिनेशंस देखे. सबसे पहले इंडिया मतलब क्या, लैंड मास. फिर बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स, फिर बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स बिकम्स योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली फॉर नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स पर्पसेस. ओके फिर हमने क्या देखा, इंडियन कस्टम्स वाटर.
बराबर है। इंडियन कस्टम्स वाटर मतलब क्या, बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है उसको कहा जाएगा इंडियन कस्टम्स वाटर। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, definition 3, vessel means what, the ship which is being used for carrying passengers, goods etc to and from India is known as vessel। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एयर से आया तो उसको तो एयरक्राफ्ट बताया जाएगा, राइट। अगर वो लैंड से आती है तो जिस कन्वेयंस से आई, ओके यस आई मिस्ड वन मोर डेफिनेशन, लेट मी जस्ट टेक दैट ऑल्सो। अगर वो रोड वाया रोड आए तो उसको क्या कहा जाएगा, व्हीकल कहा जाएगा, और व्हीकल के डेफिनेशन में रेलवेज भी इंक्लूडेड है। एंड दिस वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल टुगेदर आर नोन एज कन्वेयंस। ओके और अगर कन्वेयंस नहीं होगा तो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या लगता है, वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। Vessel, aircraft, vehicle, and this is nothing but conveyance, my dear students. This is nothing but conveyance. Okay? Yes. Further. Okay. Let's go ahead further. Just 1 minute. Yes. Okay. Now, next concept again very important. Okay, see, अब ship आया, aircraft आया, okay, railway अगर आई, okay, मतलब अगर conveyance इंडिया में आया, my dear students, अगर conveyance इंडिया में आया तो मेरा क्या पूछना है, okay, तो आप क्या किसको बोलोगे, okay, आप किसको पूछोगे, okay, तो आप किसको पूछोगे। See, if there is a vessel, there is a person in charge. If there is an aircraft, there is a person in charge. If there is railways, there is person in charge. Okay, so this person in charge, my dear students, this person in charge is very 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 important and is responsible for all the activities which happens with the conveyance. Understanding, मतलब जो सारे formalities पूरे करने हैं वो किसको करना है, person in charge को करना है। Understanding? Yes, किसको करना है, पर्सन इन चार्ज को करना है। ओके यस, श्योर राहुल, श्योर नेहा, यस आई ट्राई डूइंग दैट। ओके यस, फर्दर चले अहेड, आगे चले। चलो तो हमने क्या देखा, इंडिया मतलब क्या, हमने देखा इंडियन कस्टम्स वाटर मतलब क्या, वेसल, व्हीकल, कन्वेयंस, राइट। देन हमने आगे देखा कि व्हाट इज मेंट बाय पर्सन इन चार्ज। ओके यस, योर कमेंट्स आर बीइंग वेल read by me and I will remember all of them ahead as we go ahead in the further lectures. Okay, thank you for your valuable inputs my dear students. Okay yes, तो चलते हैं आगे। ओके ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इनके बिना हम कस्टम्स कभी आगे समझ ही नहीं पाते। ओके यस, फर्दर लेट्स गो अहेड। ओके यस, तो मतलब अगर हम कस्टम्स ड्यूटी की बात करते हैं तो देयर इज इंडिया, इंडिया के बाजू में है पानी। ओके अब क्या होता है, इंडिया से अगर सी अंडरस्टैंड, इंडिया में अगर हमको गुड्स बाहर से फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर हमको गुड्स इनटू इंडिया मंगाना है, दैट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग गुड्स। क्लियर, अगर हम इंडिया में बैठे हैं और हम आउटसाइड इंडिया से माल इंडिया में ला रहे हैं, ओके सी मतलब जो भी गुड्स इंडिया में आ रहे हैं दोज आर नोन एज इम्पोर्ट। ओके उसको क्या कहा जाएगा, इम्पोर्ट। मतलब इंडिया में बैठा होगा इम्पोर्टर और इंडिया के आउटसाइड होगा एक्सपोर्टर। अब अगर मैं इंडिया के आउटसाइड बोलूँ तो वो कहाँ पे होना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर होना चाहिए इन द हाई सीज एरिया। दिस एरिया इज नोन एज हाई सीज एरिया माय डियर स्टूडेंट्स। कहाँ पे होना चाहिए, एक्सपोर्टर इन द हाई सीज एरिया। डू यू अंडरस्टैंड, कहाँ पे होना चाहिए, इन द हाई सीज एरिया। डू यू अंडरस्टैंड, ओके यस, जस्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन सो दैट आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके समझ में आया, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया। अब आगे, व्हेन गुड्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर इट इज नोन एज इम्पोर्ट। लेट मी फोकस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग गुड्स, आई डिड नॉट यूज द वर्ड सर्विसेज, I did not use the word services. So customs duty is applicable on goods and it is not applicable on services. It is not applicable on services, my dear students. Okay? Yes. Further. आगे
अब क्या होता है, अब अगर हम इंडिया से गुड्स बाहर भेज रहे हैं, इन दैट केस इंडिया में आ जाता है एक्सपोर्टर और इंडिया के बाहर होता है इम्पोर्टर. एंड देन व्हेन वी सेंड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट. आई एम सो सॉरी, 1 minute. Yes, then in that case it is known as export. Do you understand, my dear students? Do you understand? Yes? Clear? Everyone? 100%? Yes, I hope, I think Neha and Rahul, I think थोड़ा थोड़ा मैं आपके डिमांड से कोप अप कर पाई हूँ. Why not एंड में ही सही? Okay? Yes? I hope that you have understood today's session very 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 well. Okay? Yes, अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो let me know. Okay? आज का सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगी क्योंकि as you know I do not like to leave any concepts incomplete. आगे बढ़ेंगे हम लोग कल अगले concepts की तरफ. I hope you're enjoying customs law. See you tomorrow, same time, same place and with the same enthusiasm. Thank you so much and see you tomorrow, my dear students, at 7 p.m.